No. Hello students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਦ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਫੋਰਸ, ਕਿ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਈਅਰ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ A ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ B 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਹੈ ਦੈਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਹੈ ਦੈਟ ਮਈਅਰਸ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, from where that force come, it gives the origin of the external force, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ from where it comes, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਮ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਕਮ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ। ਸੈਕਿੰਡ, ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਏ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਨ, ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਅ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਆਈ ਪੁੱਟ ਦ ਫੋਰਸ ਔਨ ਇਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ। Now what is the Newton's third law? Now Newton's third law is every action has equal and opposite reaction. हर action ਦਾ equal ਤੇ opposite reaction ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For example, we have a table, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, the book is lying on the table ਤੇ ਇੱਕ book placed ਹੈ। Now this book that applies a weight on this table, ਜਿਹੜੀ book ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਸ, ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਬੁੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ has equal and opposite reaction. This is the Newton's third law that FAB, अगर एक बॉडी A बॉडी B बॉडी ते फोर्स लगाएगी तो B बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ A ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। FAB ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, A ਬੋਡੀ B 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ B ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ A 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ FBA ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਨਿਊਟਨਸ
थर्ड लॉ कि असीं इनू हाउ वी कैन प्रूव द न्यूटन्स थर्ड लॉ। मान लो साढ़े को दो बॉडीज़ ने, बॉडी ए और बॉडी बी, और ये दोनों बॉडी आपस दे विच एक दूसरे नाल कोलाइड करते हैं। इत्थे इन्हां दी की हुंदी कोलाइजन, कोलाइड करते हैं तो बाद विच ए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी नाल मूव करना शुरू कर देंदा है तो बी अपनी वेलोसिटी दे नाल मूव करना शुरू कर देंदा है। ए अपनी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा, बी अपनी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा ना। इत्थे ए दी वेलोसिटी ज़्यादा सी ते बी दी वेलोसिटी घट सी, मतलब ए दा मोमेंटम होर सी ते बी दा मोमेंटम होर सी। ते जदों ये दोनों स्ट्राइक कीते बी दी वेलोसिटी वध गई ते ए दी वेलोसिटी घट गई। हुण चेंज इन द मोमेंटम, वेलोसिटी दे वधन या घटन दे नाल मोमेंटम ते चेंज होएगा ही, क्योंकि मोमेंटम किहदे बराबर हुंदा है, व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम P दैट इज़ इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ए दा मोमेंटम सी चेंज इन द मोमेंटम, ए दा मोमेंटम पहला होर सी ते बाद विच कोलिजन तो बाद ए दा मोमेंटम होर हो गया। सो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा P1 और डेल्टा P1 दे बराबर है। दिस इज़ द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ते डेल्टा P2 दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, और ए बी दा मोमेंटम है। ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीनस कि जिहड़ा मोमेंटम है वो हमेशा कॉन्सटेंट रहिंदा है। चेंज इन द मोमेंटम किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम, ना दिस इज़ द सिस्टम, यह एक सिस्टम है टू पार्टिकल सिस्टम जिहदे विच दो पार्टिकल्स ने। ए दा मोमेंटम ते बी दा मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन तो पहला, ते ए बी दा मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन वो चेंज नहीं होंदा। हाँ, मोमेंटम एक बॉडी तो दूसरी बॉडी नू ट्रांसफ़र जरूर हो जाता है लेकिन चेंज नहीं होंदा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिमिलर टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट डज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स कि एनर्जी जिहड़ी है वो ना तो क्रिएट होंदी है ना ही डिस्ट्रॉय होंदी है, बस एनर्जी नू असी एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है कि मोमेंटम ना तो क्रिएट होंदा है ते मोमेंटम ना ही डिस्ट्रॉय होंदा है। मोमेंटम नू असी एक बॉडी तो दूसरी बॉडी दे विच ट्रांसफर कर सकते हैं। जिवें कोलाइजन तो पहला ए दा मोमेंटम ज़्यादा सी ते बी दा मोमेंटम घट सी, जो कोलाइजन हुई ए ने अपना कुछ मोमेंटम किनू देता, बी नू, जिहदे करके बी दी वेलोसिटी वध गई। सो बाद विच बी दा मोमेंटम ज़्यादा हो गया ते ए दा मोमेंटम घट गया। सो कोलाइजन तो पहला जिहड़ा टोटल मोमेंटम सी सिस्टम का ए ते बी पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम, ते कोलाइजन तो बाद जिहड़ा टोटल मोमेंटम सी ए ते बी का वो सेम ही रहा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम जिवें डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 किहदे बराबर है, जीरो के बराबर। अगर बॉडी के उपर कोई बाहरों फोर्स नहीं लग रहा, इन्हां दे उपर बाहरों कोई नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरों कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो टोटल मोमेंटम तो पहला भी जीरो सी ते बाद विच भी जीरो हो गया। सो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 किहदे बराबर है, जीरो के बराबर। सो डेल्टा P1 किहदे बराबर आ गया, माइनस डेल्टा P2, क्योंकि बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो दैट्स वाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन ते आफ्टर कोलाइजन दैट इज़ इक्वल्स टू जीरो। सो डेल्टा P1 इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P2 के बराबर आ गया। इनू डेल्टा T नाल डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय डेल्टा T टाइम दे नाल, किन्ने टाइम वास्ते। सो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। ते अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ के मुताबिक जोड़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किहदे बराबर होंदा है, फोर्स के बराबर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए दैट इज़ इक्वल्स टू फोर्स ऑन द पार्टिकल ए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी दैट इज़ इक्वल्स टू द फोर्स ऑन द पार्टिकल बी। सो हैंस वी हैव प्रूव्ड द थर्ड लॉ दैट द फोर्स ऑन पार्टिकल ए इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ पार्टिकल बी। जिन्ने फोर्स नाल ए बी नू अपनी वाल खिंच रहा, उन्ना ही फोर्स नाल बी जिहड़ा ए नू अपनी वाल खिंचेगा, सेम एज दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स विच भी जिन्ने फोर्स नाल
ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੂਸਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਸੋ that is the Newton's third law, or this is the proof of the third law. Now we have the examples of the, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ examples ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਜੇ ਬੁੱਕ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੇਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕਿੰਗ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਕ, ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਉਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਐ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ in this direction. This R is resolved in two component. ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਨਾਓ ਵਾਈਲ ਵੀ ਆਰ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੂਵ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦਾ। ਸੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗਨ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਵੀ ਫਾਇਰ ਅ ਗਨ, ਫਾਇਰ ਫਰੋਮ ਅ ਗਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੇਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਮਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਐ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਬੁਲੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਗਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਲ ਬੈਕਵਰਡ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਸੋ ਗਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਸ ਲਈਦਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਫਾਇਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਓਗੇ। ਸੋ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਕੋਇਲ backward. So this is known as the recoiling of gun, and it is also the Newton's third law. So these are some of the practical examples of the Newton third law, or there are many examples of the Newton's third law.
उस तो बाद आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, मैं पहला उन्होंने तुहानूं दसता कि जिस तरीके नाल असीं एनर्जी नूं ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी नूं असीं एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरीके नाल ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम जिहड़ा है ना तो असीं क्रिएट कर सकते हैं ना असीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोमेंटम नूं असीं एक बॉडी तो दूसरे बॉडी दे विच ट्रांसफर कर सकते हैं। जिहड़ा लीनियर मोमेंटम है वो सम जिहड़ा टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, जिवें यह सिस्टम है ए और बी, यह दो पार्टिकल्स ने, यह सिस्टम है, इन्हां दो पार्टिकल का सिस्टम जिहड़ा है इहदा टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्वड रहिंदा है। द टोटल किसी भी सिस्टम दा विच असीं ना तो मोमेंटम सिस्टम दे विच पा सकते हैं ना ही सिस्टम दे विचों मोमेंटम नूं बाहर कढ सकते हैं। अगर उहदे ते कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा होवे ते उस सिस्टम का जिहड़ा टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कॉन्सटेंट रहिंदा है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्वड। बस ए जिहड़ा मोमेंटम है अपना बी नूं दे सकदा है, ते बी जिहड़ा अपना मोमेंटम ए नूं ट्रांसफर कर सकदा है, लेकिन टोटल मोमेंटम जिहड़ा है वो सिस्टम का कॉन्सटेंट ही रहेगा। मान लो पी ए इज़ द मोमेंटम ऑफ ए एंड पी बी इज़ द मोमेंटम ऑफ बी, तो कोलाइजन तो बाद ए का मोमेंटम हो गया पी ए डैश, तो बी का मोमेंटम हो गया पी बी डैश। नाउ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए का मोमेंटम कितना चेंज होया पी ए डैश माइनस पी ए, तो बी का मोमेंटम कितना चेंज होया पी बी डैश माइनस पी बी। बाद च मोमेंटम इन्ना हो गया, पहला मोमेंटम इन्ना सी। सो दिस इज़ द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए। सो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो दिस इज़ द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी, तो ये बी का मोमेंटम है जिहड़ा चेंज होया। Now the rate of change of momentum that is equals to force. This is the force on A, so this is the force on B. A B ते force है according to Newton's second law. Newton's second law ਦੇ ਮੁਤਾबिक the rate of change of momentum, this is the rate of change of momentum of A over time ਦੇ ਨਾਲ divide ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ rate of change of momentum. The rate of change of momentum of A that is equals to force on A, the rate of change of momentum of B that is equals to force on B. Now according to third law एफ ए बी किहदे बराबर है माइनस एफ बी ए दे बराबर है। दिस इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर असीं इत्थे पुट कर दिए दिस इज़ इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी ए दैट इज़ इक्वल्स टू पी बी डैश माइनस पी बी ओवर डेल्टा टी ते ओवर डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी ते डेल्टा टी कट्टे गए, तो पी ए डैश माइनस पी ए दैट इज़ इक्वल्स टू पी बी डैश माइनस पी बी, तो पी ए डैश प्लस पी बी माइनस आना है, इधर प्लस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी बी पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल्स टू पी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी पी ए प्लस PB. So this is the total momentum before collision दोनों system दा, and this is the total momentum after collision. So the total momentum system दा पहला ते बाद सेम ही रहा, वो चेंज नहीं किया। ना यदि एक बड़ी सोहनी एग्जाम्पल असीं लैंदे आ रिकॉयलिंग ऑफ गन, एप्लीकेशन आ गई इस न्यूटन्स थर्ड लॉ दी, दैट इज़ द रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन, नाउ वी हैव अ गन। अगर असीं मान लीए साडे कोल गन है, तो गन दे विच की है बुलेट, बुलेट दा मास है स्मॉल एम, तो गन दा मास की है कैपिटल है। बुलेट जिस वेलोसिटी नाल अगे नूं जाएगी दैट इज़ स्मॉल वी, तो गन जिस वेलोसिटी नाल पिछे नूं जाएगी दैट इज़ कैपिटल वी। नाउ मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज़ इक्वल्स टू बिफोर फायरिंग, क्योंकि फायरिंग तो पहला गन का मोमेंटम कितना होएगा जीरो, तो बुलेट का मोमेंटम कितना होएगा जीरो बिफोर फायरिंग, फायरिंग तो पहला। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, वी जीरो, कैपिटल वी जीरो है, तो स्मॉल वी भी जीरो है। फायरिंग हो ही नहीं, मोमेंटम की कोई वेलोसिटी नहीं है, सो मोमेंटम जीरो है, सो इट इज़ जीरो, मोमेंटम इज़ जीरो, फायरिंग ही नहीं हुई, तो वी कैपिटल वी भी ज़ीरो है, तो स्मॉल वी भी ज़ीरो है। सो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इज़ ज़ीरो। सो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम
टोटल मोमेंटम जीरो के बराबर आ गया। नाउ टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो फायर किया। नाउ गन का मोमेंटम फायर तो बाद गन पिछे नूं गई v वेलोसिटी नाल, m ओहदा मास ते v ओहदी वेलोसिटी, ते बुलेट का मोमेंटम कितना आ गया mv। ये आ गया मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्वड रहता है। सो बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना सी जीरो, ते आफ्टर फायरिंग मोमेंटम कितना है इन्ना। सो इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग बिफोर ते टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ए जीरो है तो ए कितना प्लस एम वी, तो अगर असीं उधर ले जाइए एम वी कि बराबर आ जाएगा स्मॉल एम वी, माइनस का साइन आ गया। तो जिहड़ी वेलोसिटी नाल गन पिछे नूं जाएगी, माइनस का साइन की दस रहा है कि गन जिहड़ी है अगर बुलेट इधर नूं जा रही है तो गन जिहड़ी है माइनस का साइन करके पिछे नूं जाएगा। किन्नी वेलोसिटी नाल गन पिछे नूं जाएगी, इस वेलोसिटी नाल गन पिछे नूं जाएगी। नाउ यू आर थिंकिंग कि बुलेट तो बड़ी हाई वेलोसिटी नाल अगे नूं जाती है, लेकिन गन पिछे नूं घट वेलोसिटी नाल जाती है। गन पिछे नूं घट वेलोसिटी नाल ही जाएगी क्योंकि मास ऑफ द गन इज़ वेरी हाई। गन का मास बहुत ज़्यादा है। अगर गन का मास घट होएगा तो पिछे नूं उन्ना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी। ना गन का मास ज़्यादा है जिदे करके गन की पिछे नूं जाने वाली वेलोसिटी घट गई, डिक्रीज़ कर गई। सो गन जिहड़ी है वो जिहड़ी रिकॉयल करेगी वो घट वेलोसिटी नाल करेगी, तो बुलेट जिहड़ी है वो ज़्यादा वेलोसिटी नाल अगे नूं फायर होएगी। ना ये दूसरी एग्जाम्पल है बोट। ना वैन यू फॉल, अगर तुसी खड़े हो तो बोट तो जंप लगा रहे हो, बोट तो इधर नूं जंप लगाओगे, तुसी इधर नूं जंप लगाओगे, लेकिन बोट जिहड़ी है वो इधर नूं मूव करेगी। दैट इज़ ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी मोमेंटम का ही एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अगर इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए तो न्यूटन्स थर्ड लॉ देखिए, दे आर वन एंड द सेम थिंग, एक तरह नाल इक्को जी है कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्वड रहता है। जदों इसी सिस्टम दे विच दो पार्टिकल्स होन तो एक पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल के उपर फोर्स लगा रहा हो तो एक पार्टिकल अपना मोमेंटम दूसरे पार्टिकल नूं ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन नवा क्रिएट नहीं कर सकता। सो किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जिहड़ा है वो हमेशा कंजर्वड रहता है, वो ना तो क्रिएट होंदा है ना ही डिस्ट्रॉय होंदा है। सो दैट इज़ द लॉ सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम। सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्वड रहता है, कॉन्सटेंट रहता है। जिवें एनर्जी जिहड़ी है वो कंजर्वड रहिंदी है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। Now this is about the Newton's third law. Now second law, that is the real law of motion. Now this is the very important question. Second law is the real law of motion कि जिहड़ा first law है वो भी second law दे विचों निकलिया ते जिहड़ा third law है वो भी second law दे विचों निकलिया। Now what is second law? अगर असी first law बारे डिस्कस करिए तो first second law की है F is equals to mass into acceleration. Now अगर F is equals to, that is equals to mass into acceleration. If F is equals to 0, अगर फोर्स 0 हो जाए तो एम ए किहदे बराबर है, 0 के बराबर हो गया। हुण बॉडी का मास तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सलरेशन किहदे बराबर है 0। मतलब अगर बॉडी ते फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी एक्सलरेट नहीं होएगी, बॉडी अगे नूं मूव नहीं करेगी जिन्नी देर तक उसदे उपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नाउ दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर फोर्स 0 है तो मास इंटू एक्सलरेशन ये भी 0 हो गया। मास तो 0 हो नहीं सकता बॉडी का, इट मीनस एक्सलरेशन 0 है। मीनस अगर बॉडी ते फोर्स नहीं लग गया तो वो एक्सलरेट नहीं करेगी, इट वोंट एक्सलरेट। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक ही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हैंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ कि अगर फोर्स 0 है तो एक्सलरेशन भी 0 है, बॉडी मूव नहीं करेगी। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ नूं असीं कित्तों कढ़ता, सेकेंड लॉ तो।
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ। ਨਾਓ F delta AB into T, that is the into delta T, that is the change in the momentum of A particle, or FBA into delta T, that is the change in the momentum of second particle. This is the change in momentum of first, this is the change in momentum of second. Now this is the second law, change in the rate of change of momentum, that is equals to force. Now change in the momentum of first A particle, change in the momentum of the B particle. Now external force 0 है, external force 0 है, बाहरों कोई force नहीं लग रहा। ਇਹਦਾ मतलब FAB into delta T plus FBA into delta T, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ FAB into delta T is equals to minus FBA into delta T ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। delta T ਕੱਟੇ ਗਏ, FAB is equals to minus FBA। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ करते हैं। हैंस सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। नाउ कल असी कुछ एप्लीकेशंस करा, नैक्सट लैक्चर दे विच असी कुछ एप्लीकेशंस करांगे, दैट इज़ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, अ मैन इन अ लिफ्ट एंड द एलीवेटर। ये चीज़ असी नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस कर।